Many of you are new here, Bhumi and Karamjot and Mayank. So we have starting new chapter, that is chapter number 2. अभी chapter 1 बहुत बच्चों का रहता है, I know. ठीक है, but Vanshika and Kavya, your chapter 1 was complete. So I'll take it up on Tuesday, Thursday, Monday, Wednesday, Friday, and chapter 1 भी मैं complete करा दूँगा. और Vanshika, you're saying something? सर मुझे कुछ पूछना है क्वेश्चन. अच्छा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास में तुम्हारे डाउट ले लूंगा वंशिका. ओके, हाँ. सो अभी हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं एंड दिस चैप्टर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, दिस इज द सेम स्ट्रक्चर चैप्टर दैट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 9. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टाइप प्रेजेंट इन चैट. एक बार चैट पे प्रेजेंट लिख दो. यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन योर माइक और योर चैट. ठीक है, एंड यू हैव टू टेल मी wherever कोई तुम्हें डाउट आए या कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज टाइप इन चैट और यू कैन स्पीक ऑन माइक एज वेल. देयर इज नो पॉइंट. Mayank, are you able to hear me? Bhumi, Karamjot? All right. Bhumi, I think you said that you have already done this chapter, so this will just be a revision, a quick revision of that. All right. Please type present in chat, everyone. Mayank, am I audible to you? Yes, sir. Okay. All right. So look. So this chapter, structure of atom. All right. So structure of atom. First of all, we need to know what actually is atom, right? Atom क्या होता है? तो अगर हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जाएं कि what is an atom, तो atom को हम बोलते थे it is the smallest indivisible part of matter. So what do we say? We say atom is smallest indivisible part, and this definition was given by Dalton, and he called atom as the indivisible particle of matter. So you tell me, is this definition still true or is this wrong? Because now we know that atom has something that is smaller than atom. Yes, so this definition is not correct, right? Because earlier we used to say that atom is the smallest indivisible part, but now we know that atom also has smaller particles. You might have heard about them: electrons, protons, and the neutrons, right? So electron, proton, neutron being the smallest particle, that is why the definition given by the Dalton was scrapped off. It is not said कि it is not now said कि atom is the indivisible particle of matter. अब कुछ और, अब हमें matter के बारे में से आगे बढ़ना है. अब atom के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? What is atom? अगर मैं atom की definition बताऊं, anybody would like to tell कि how would you define the atom now? कोई बोलना चाहेगा? Alright, मैं बताता हूँ. So how will we define atom in today's world? We'll say atom is the smallest particle of matter which is capable of taking part in a chemical reaction. मतलब ये वो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का जो रिएक्शन में पार्ट ले सकता है. Capable of taking part in a chemical reaction. मतलब electron, protons and neutrons by themselves cannot take part in the reactions, but the atom can take part in a reaction. So the smallest particle of matter which can take part in a chemical reaction, you have to write this, okay? So it is called atom. Is this definition clear to everyone? Give me a thumbs up or clear, say clear in chat. ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? यस और नो? ऑलराइट, चिराग को क्लियर है. बाकी सब? करमजोत, वंशिका, काव्या,
कोई डाउट है तो प्लीज स्पीक ऑन माइक. ऑलराइट, सो अब बात ये आती है, हाउ डू वी come to different particles of matter. मतलब हम ये इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को कैसे समझेंगे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हाउ डिड दे इवन गेट डिस्कवर्ड? कहाँ से कैसे डिस्कवर हुए? तो सबसे पहले हम इन्हीं की डिस्कवरी की बात करते हैं. ऑल्दो दिस इज अ टॉपिक दैट इज इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इट विल नॉट बी इन योर कोर्स. मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये हर साल कट ही जाता है, और क्योंकि लास्ट ईयर पैंडेमिक में भी कट गया था. बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू जस्ट अ हिस्ट्री ऑफ हाउ दीज एक्सपेरिमेंट्स वर टेकन एंड हाउ वी नो what electron is, what proton is and what neutron is. Alright, so starting with discovery of electrons. ठीक है, क्योंकि after Dalton gave its atomic theory, the first thing to be discovered was the electron, but electrons were discovered by Thomson using the apparatus that was given by Michael Faraday. Michael Faraday ने एक apparatus बनाया था and इसने कुछ observations करी थी जिसके थ्रू we are today able to understand कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइकल फैराडे ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे एट दैट टाइम दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट. हम उनको समझते हैं पहले. तो माइकल फैराडे ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत काम किया था. ठीक है, तो पहले हमें ये नहीं पता था इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वी डिड नॉट नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो माइकल फैराडे ने क्या किया? माइकल फैराडे showed that current passes through electrolytes या solution. जैसे पानी से करंट पास होता है वैसे ही he showed that बहुत सारे मटेरियल में से करंट पास हो सकता है. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ करंट के बाद जो करंट के बारे में और ऑब्जर्वेशंस करी थी माइकल फैराडे ने करी थी. एट दैट टाइम जब हम मान रहे थे कि एटम एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, डाल्टन ने जो हमें बताया था कि एटम एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, एटम इज न्यूट्रल. सो वी हैड नो आइडिया कि ये करंट कहाँ से आ रहा है, ये करंट कैसे आ सकता है, क्योंकि एटम मेक्स अप एवरीथिंग. एटम सोल्यूशन में भी है, सॉलिड में भी है, मेटल्स में भी है, बट एटम्स जो हैं वो तो न्यूट्रल है. तो करंट तो उन्हीं चीजों से पास हो सकता है जो न्यूट्रल नहीं है, राइट? सो this gave us an idea that there might be some particle that can conduct the electricity. This gave an idea that there must be something in the atom that there must be. तुम्हें लिखना है ये सारा कुछ जो मैं जैसे लिख रहा हूँ. You have to write this. I'll check your notes. ठीक है, that there is. बता दो, मेरी मीटिंग लीव हो गई थी. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, राइट? पर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को हमने डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि हमें बार आगे चलकर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चला. अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पता कैसे चला. तो माइकल फैराडे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि करंट जो होता है वो सोल्यूशन से, जैसे कि नमक का एक पानी का एक सोल्यूशन बना दिया या वाटर है, उनसे करंट पास होता है. तो वो करंट पास होने के लिए देयर मस्ट बी समथिंग हैविंग अ चार्ज, तभी करंट पास होगा. But atom according to the Dalton was neutral. So the thing is, this gave us an idea that there is something in the atom that conducts electricity. कोई ना कोई चीज होगी जो that is responsible for electricity. तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगा कि एटम तो न्यूट्रल है पर एटम के अंदर कुछ और होगा जो न्यूट्रल नहीं है. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो एवरीवन? जल्दी से, मुझे ऐसे डेड क्लास पसंद नहीं आती. तुम रिस्पॉन्ड करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं यहीं रुक जाऊंगा. इज दिस क्लियर? टाइप यस, स्टे से यस इन माइक, माइक पे बोलो यस और क्लियर है. तो चिराग, जतिन? यस सर, क्लियर है. क्लियर है. मयंक, भूमि? यस सर. ठीक है. सो अब हम बात ये कर रहे हैं कि माइकल फैराडे की इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है. तो माइकल फैराडे
एक और काम कर रहा था, और माइकल फैराडे ने एक ऐसी ट्यूब बनाई थी जिसे हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइकल फैराडे ने एक और apparatus बनाया था दैट वी नाउ नो एज कैथोड रे ट्यूब। और कैथोड रे ट्यूब कैसे बनती है उसके बारे में मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो, कैथोड रे ट्यूब एक ग्लास की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास। Cathode ray tube is made of glass and it is fitted with electrodes. Electrodes क्या होती है? Metal rods. ठीक है, these are electrodes. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स दो तरह की होती है, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड। शायद तुमने पहले भी सुना हो कि एक इलेक्ट्रोड होती है जिसे हम बोलते हैं कैथोड और एक होती है एनोड। यहाँ पे जो एनोड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगाई जाती है, और जो कैथोड होती है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। सॉरी, उल्टा बोल दिया। यहाँ पे एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है एंड कैथोड इज नेगेटिव। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इन दिस ट्यूब एंड कैथोड जो है नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। जिस टर्मिनल से जो कनेक्टेड होगा वही उसका चार्ज होगा, राइट? तो कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल रॉड एंड एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल रॉड। ये सब के सब एक ट्यूब के अंदर है विच इज मेड अप ऑफ ग्लास। इस ग्लास ट्यूब के अंदर से हम क्या करते हैं कैथोड रे ट्यूब में? वी टेक आउट एनी गैसेस। कुछ गैसेस जो होती हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पंप। तो वी टेक आउट द गैसेस। पंप से अंदर प्रेजेंट गैसेस जो होती हैं, इन गैसेस का प्रेशर लो कर देते हैं। इफ आई टेक अ पंप और पंप से मैं हवा को बाहर निकाल दूं तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी? दिस कंडीशन विल बी लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि गैसेस अगर कहीं से निकाल ली जाए तो वहां पे क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है? लो प्रेशर। एंड व्हाट अबाउट वोल्टेज? वोल्टेज कितनी लेनी है? हाई वोल्टेज वी हैव टू टेक। यू ड्रॉ दिस डायग्राम। Alright, so cathode ray tube का कंस्ट्रक्शन में what will I say? It is made of glass. पहली चीज, it is made of glass, yes. Fitted with two electrode. It is made of glass. Fitted with metal electrodes. ठीक है. Third, it is low pressure created using pump. ठीक है, अब सपोज मैं यहां पर एक एमीटर लगा देता हूं। यू हैव स्टडीड एमीटर इन योर क्लास 10। अब यहां पे एमीटर लगाने से अब कैन यू टेल मी इस कंडीशन में क्या एमीटर कोई करंट दिखाएगा? यस और नो? व्हाट इज योर आंसर? यू कैन स्पीक ऑन माइक और रिप्लाई ऑन चैट। सबने जवाब देना है। व्हाट डू यू थिंक? क्या यहाँ पे करंट शो होगा एमीटर में? क्या डिफ्लेक्शन आएगी? यस और नो? इज द सर्किट ओपन और इज इट सर्किट क्लोज? क्या ये सर्किट क्लोज्ड है या सर्किट ओपन है? ऐसे सोच के बताओ। सर्किट कहाँ क्लोज्ड है? तुम सोचो, यहाँ पे गैप है इस एनोड और कैथोड के बीच में, देयर इज अ गैप। क्या यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए? यस और नो? भूमि, चिराग, जतिन, करमजोत, काव्या, मयंक, वंशिका, मुझे आंसर चाहिए।
What do you think? Current will flow, yes or no? Kavya and Chirag is saying yes. Karamjot is saying no. What about everyone else? Vanshika is saying no. Bhumi? What do you say? Mind is saying no. Jatin, क्या जवाब है? Yes or no? What do you think? You may not be correct. मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम्हें correct answer ही देना है. Yes. Okay. Jatin is saying yes. Bhumi, are you able to hear me? What do you think? Current will flow or not? Okay. So, according to the knowledge that we have in class 10, the circuit is not closed. क्यों? क्योंकि इस रॉड और इस रॉड के बीच में एयर गैप है एंड एयर वी नो इज एन इंसुलेटर. थोड़ी बहुत गैस तो है ना इसके अंदर, और अदरवाइज अगर ये वैक्यूम भी होता तब भी इसमें थोड़ा बहुत तो ये सर्किट किसी चीज से जुड़ा थोड़ी हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज करंट शुड नॉट फ्लो. करंट इसमें फ्लो नहीं होना चाहिए. तो अगर करंट शुड नॉट फ्लो हियर, अगर करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होना चाहिए, तो फैराडे ने एंड अदर साइंटिस्ट, जिस माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया दैट करंट फ्लोज इन दिस cathode ray tube, that current was passing in this tube. A question is, how is it possible? How is it possible कि करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा हो जब सर्किट क्लोज है? सर्किट क्लोज होने पे करंट शुड नॉट फ्लो. यही बात है ना हमारे दिमाग में. तो अब इसी को समझने के लिए थॉमसन ने और एक्सपेरिमेंट किए, जे थॉमसन. सो नाउ वी लुक एट what J.J. Thomson did with this cathode ray tube. ठीक है ना? So look, या फिर पहले हम थॉमसन से पहले एक चीज और देखते हैं. देखो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है इस कैथोड रे ट्यूब का. विल ड्रॉ इट अगेन. Again, we are using high voltage battery. We are using high voltage battery, and this is our anode. Okay, थोड़ी सी gases को बाहर निकाल दिया है. That is low pressure condition has been created inside. और ये है cathode. अब हमने क्या किया? एनोड में कुछ होल्स कर दिए. We made some holes inside anode. एनोड के अंदर कुछ होल्स बना. अब एनोड पे होल्स लगाकर पीछे की साइड, एनोड के पीछे जो वॉल है, in this wall what did we do? We applied a material. और ये मटेरियल है, this material is called phosphorescent material. फॉस्फोरेसेंट मटेरियल क्या होता है? और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का एग्जांपल है जिंक सल्फाइड. ठीक है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल ग्लोज व्हेन अ पार्टिकल हिट्स ऑन इट. इट ग्लोज इफ अ पार्टिकल हिट्स ऑन इट. ये मटेरियल हमने लगाया है. ये मटेरियल किस पे लगाया है? दिस मटेरियल वी हैव अप्लाइड ऑन द बैक ऑफ द एनोड, और एनोड में कुछ होल्स कर दिए.
टू सी कि करंट क्यों पास हो रहा है। करंट पास हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, करंट पास हो रहा था, उसको ऑब्जर्व करने के लिए अब हमने एनोड्स पे गोल लगा दिए जस्ट टू सी कि क्या कोई चीज है जो यहाँ से कैथोड से एनोड तक, क्या कोई चीज है जो कैथोड से एनोड तक करंट को लेके जा रहा है, एंड व्हाट कुड इट बी। सो वी ऑब्जर्व आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व कि देयर वर मार्क्स ऑन द फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पे कुछ मार्क्स आ रहे थे। These marks suggest कि something was actually hitting these walls. एनोड की पीछे वाली जो वॉल है उस पे कुछ ना कुछ हिट कर रहा था। क्यों? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिस पे अगर कोई चीज हिट होती है तो वो ग्लो करता है। और आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट अगेन वी सॉ कि देयर वर सम ग्लोइंग मार्क्स ऑन दिस मटेरियल, ऑन दिस वॉल। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि देयर इज डेफिनेटली समथिंग दैट इज पासिंग, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द एनोड। कोई ना कोई चीज है जो एनोड से की तरफ आ रही है और वो कहां से चल रही है? इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड। इस यही चीज करंट को पास करा रही है इन दिस ट्यूब, और that is why the ammeter was showing reading. Otherwise current cannot flow अगर ये circuit closed है। So इस ray को हमने नाम दिया, we call it cathode rays। इस rays को क्या नाम दिया? We called it cathode rays। तो cathode rays starts from the cathode, move towards the anode, cathode से चलते हैं anode की तरफ जाते हैं, ठीक है? Starts from the cathode and move towards the anode. And you tell me ये जो कैथोड रेज है, क्योंकि कैथोड पे जो चार्ज है that is our negative charge, और एनोड पे जो चार्ज होता है वो है पॉजिटिव चार्ज। You tell me ये जो कैथोड रेज है are they behaving like a positively charged substance या negatively charged substance? What do you think? कैथोड रेज पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिव? सर नेगेटिव। थर्ड नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड, करेक्ट। तो हमें लग रहा है नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, वो नेगेटिव से दूर जा रहे हैं, और एनोड पॉजिटिव है और ये एनोड की तरफ जा रहे हैं। सो कैथोड रेज का कुछ बिहेवियर थे, कुछ कैरेक्टर्स थे। कैथोड रेज के क्या कैरेक्टर्स थे? पहला कैरेक्टर था दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, जब कोई, अच्छा वो भी हम बात करेंगे। अच्छा एक का, और दूसरी चीज ये कि they behave as negatively charged particle. They behave as negatively charged particles. कैसे बिहेव कर रहे हैं? They are behaving like a negatively charged particle. ठीक है, अब अगर हम बात करें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, This meeting is being recorded. अब इसके अंदर थर्ड पॉइंट, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को लेटर ऑन दे वर रीनेम, या फिर दे वर कॉल्ड लेटर रीनेम एज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो रेज है, दीज आर नथिंग बट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड से चलते हैं एनोड की तरफ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी इस एपरेटस से इस प्रकार हुई। तो यू टेल मी, इज दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर? यस और नो एवरीवन? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन माइक। क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर इन चैट। जब तक सब बच्चों को क्लियर नहीं आएगा या फिर कोई डाउट नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा।
ठीक है। माइक क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो माइक पे। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। ऑलराइट, तो थॉमसन ने एक और काम किया, थॉमसन ने थोड़ा सा और चेंज किया। व्हाट डिड ही डू? इसने कैथोड रे को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। He modified cathode ray a little bit more. Question, sir. हाँ बोलो। Sir, is there any difference between phosphorescent material and fluorescent material? They are same, but phosphorescent और fluorescent material similar है, ठीक है। Fluorescent जो होता है, it is anything that glows continuously, right? तो fluorescent markers you use ना, तो वो हमेशा ग्लो करते हैं। बट जो phosphorescent material है, it glows only when anything hits on it, जब उस पर कुछ hit करता है। Clear भूमि? But we can use it if we want to use phosphorescent material. So despite using phosphorescent, we can replace it with fluorescent as well. Yes, they are usually the same terms, क्योंकि fluorescent also glows and phosphorescent also glows. तो phosphorescent मैं ये कह रहा हूँ, phosphorescent material is better because it glows when only anything hits on it. So that is why you use phosphorescent, जो कि NCERT में given है। Okay. Alright, so अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा सा modification और किया। We did a little bit more modification. थॉमसन ने किया ये एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वाला, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जे थॉमसन चार्ज टू मास रेशियो। तो he modified cathode ray tube to introduce magnetic, तुम्हें बनाना है, तुम्हें लिखना भी है, जो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। You have to write the notes and draw as I am drawing it. To introduce magnetic and electric field. उसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया इस कैथोड रे ट्यूब में। कैसे इंट्रोड्यूस किया? He used two plates, a positively charged plate यूज करी उसने और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट यूज करी। एक ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा दी और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दी। ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट से क्या हुआ? नाउ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज प्लेट से नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है इसके अंदर। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ही इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके अंदर डाल दी, मैग्नेटिक फील्ड भी डाल दी। व्हाट ही डिड वाज ही यूज्ड टू मैग्नेट्स एज वेल। He used magnets as well. उसने नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया और नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। He also introduced magnetic field, ठीक है। अगर तुम्हें मैं NCERT में दिखाऊं ये डायग्राम, तो NCERT if you have,
ठीक है। सो दिस वाज द डायग्राम इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम है कैथोड रे ट्यूब का। इसमें ही इंट्रोड्यूस नॉर्थ साउथ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्लेट्स हैं, ठीक है। यही डायग्राम को हमने बनाया है और इसके अंदर नॉर्थ साउथ को थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा नॉर्थ साउथ जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे ही बना देते हैं। ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी इस कैथोड रे ट्यूब में इंट्रोड्यूस कर दी। अब इसको इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन? तो जे थॉमसन ने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे के ऑपोजिट लगाया। डू यू नो कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होने की वजह से उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज का के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में होती है चार्ज के। तो सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से निकलता है, जो कैथोड रे, क्योंकि हमने सेंटर में होल किया है तो कैथोड रे सिर्फ सेंटर से निकलेगी, बीच में से आगे और ऊपर नीचे में से कोई भी अगर कैथोड रे निकलेगी तो वो इस प्लेट से टकरा के रुक जाएगी। अगेन वी हैव आल्सो यूज्ड अ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, हमने फॉस्फोरेसेंट मटेरियल को अगेन यूज किया है एंड उसकी कवरिंग हमने इस वॉल पे लगा दी। सो ही सेट अप दिस apparatus सच दैट कि जब कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को नहीं चलाया गया तो जो कैथोड रे ट्यूब है, कैथोड रे है, इट वुड हिट द पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कैथोड रे ट्यूब, बिकॉज दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, इट विल पास थ्रू दिस होल इन द एनोड एंड इट विल रीच हियर। मैं इसके चार्जेस भी बना देता हूं। ये हमारी कैथोड है, दैट वाज नेगेटिव, एंड दिस इज आवर एनोड, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, और जो हमारी कैथोड रे है वो डायरेक्ट बी पे आ जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन no electric and magnetic field is applied, when no electric or magnetic field was applied, the rays hits point B। जब कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करी जाती तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ना अप्लाई करने की वजह से बी पे हिट करती है। लो प्रेशर की बात मैं अभी समझा दूंगा वंशिका। अच्छा हाँ, ये बात सही है वंशिका कि अगर ट्यूब में से तुम एयर निकाल लेते हो तो थोड़ी बहुत गैसेस बच जाती हैं, इसलिए लो प्रेशर हो जाता है, बट बिल्कुल सारी गैसेस नहीं निकाली इसीलिए वो वैक्यूम नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ी बहुत गैसेस हमने छोड़ दी जो हमें चाहिए या फिर इस एक्सपेरिमेंट के लिए। ये फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करी जाती, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रखा, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखा, इट हिट्स द पॉइंट बी। इज दिस क्लियर, यस और नो? यस सर। यस बट आप बोल रहे हो ना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होगी तो वो स्ट्रेट हिट करेगी पॉइंट बी पे, बट आपने इस डायग्राम में तो मैग्नेट्स रखे हैं ना। हाँ मैंने रखे हैं, पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव अ स्विच, तो इनको हमने दिखाया एज अ मैग्नेट्स है, बाहर मैग्नेट लग रहा है,
बट दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक स्विच होता है, तो वी स्विच इट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड स्विच इज ऑफ। क्लियर? तो सर सर्किट अभी सर्किट सर ऑफ है अभी। सर्किट ये अलग सर्किट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का अलग सर्किट होगा, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच ऑफ किया है, पर ये तो ऑन है। सर मतलब इस सर्किट में भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो पॉइंट बी पे जा रहा है। ठीक है, नॉट ठीक है। करमजोत एंड भूमि, इज दिस क्लियर? मयंक, जतिन, यस सर क्लियर है। ठीक है, ऑलराइट। सेकेंडली, हाँ, secondly, he adjusted such that when electric field was applied, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो ये पार्टिकल निकला तो कैथोड रे ट्यूब से होगा, यहीं से निकला, इसी होल से निकला, बट इट वुड देन डिफ्लेक्ट upwards to the point A. अभी मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना मतलब कि सिर्फ मैंने इलेक्ट्रो जो पॉजिटिव वाली ये इलेक्ट्रोड है इसको ऑन किया। इसको ऑन करने से क्या हुआ, क्योंकि हमारा ये कैथोड रे ट्यूब इज इलेक्ट्रॉन और वो नेगेटिव चार्ज होता है, और ऊपर जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और वो कहां चला जाएगा, इट विल डिफ्लेक्ट अपवर्ड्स टू द पॉइंट ए। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड, रेज हिट द पॉइंट ए। यू टेल मी, सेकेंड पॉइंट इज क्लियर? यस और नो, जल्दी से चैट पे लिख दो यस अगर क्लियर है, या माइक पे बोल दो यस। ठीक है। थर्ड, उसने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से लगाया था कि उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट काम हो। सो ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट when magnetic field is switched on, the particle hits the point C. इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, एंड यू नो कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स वो जो होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, दे यूजुअली डिफ्लेक्ट। भूमि जो क्लास कल थी ना, वो वाले बैच में बोहर मॉडल शुरू हो रहा था, इसमें अभी चैप्टर 2 शुरू हुआ है, तो इफ यू वांट टू डू बोहर मॉडल यू कैन ज्वाइन टुमारो। ठीक है, अगर तुमने ये सब किया हो। क्या बोल रहे हो, एक बार दोबारा रिपीट बोलो। हेलो, हाँ हाँ बोलो। प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। आई एम सेइंग जो बोहर मॉडल वाला बैच था ना, वो 4 to 5 में था कल, तो अभी इस वाले बैच में स्टार्टिंग से स्टार्ट है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, ये तुमने किया हुआ है तो यू कैन ज्वाइन टुमारो एट 4। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पॉइंट, व्हेन magnetic field is applied, the particle या rays hit the point C। ये कौन से पॉइंट को हिट करते हैं? हिट द पॉइंट सी पॉइंट पे हिट करते हैं। तो सी पॉइंट ये इस तरीके से उसने सेटअप किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि जब भी कोई पार्टिकल अपना पाथ छोड़ता है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
in this experiment, depends upon what things do you think deflection depends upon? deflection किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पाथ को डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है? कैन यू गिव मी सम पॉइंट्स जो तुम्हें लग रहा है दिमाग में आ रहा है? नीड नॉट बी करेक्ट, बोलो। The kind of charge it carries. इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ऑन द पार्टिकल, ये दो वंशिका और जतिन ने बोला। और कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, और Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। और कोई? The direction of magnetic field and electric field. हाँ, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। और कोई? पार्टिकल किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? पार्टिकल का डिफ्लेक्शन, पार्टिकल का मुड़ना। कैन इट? हाँ बोलो चिराग। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो उसको मैंने फील्ड में ही ले लिया ना। फील्ड की डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और कोई चीज जिस पे डिपेंड कर सकता है ये पार्टिकल का डिफ्लेक्शन? कैन इट बी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन? क्योंकि जो हल्की चीज होती है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट। Current. क्या बोल रहे हो वंशिका? So the amount of current flowing through the circuit. हाँ, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता चलेगा, पर इलेक्ट्रॉन सर्किट वाले से करंट से कुछ इफेक्ट आएगा नहीं। सर्किट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे बट उनके अंदर चार्ज तो ज्यादा नहीं होगा, चार्ज से फर्क पड़ेगा। सो डिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। जो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है उस पर डिपेंड करेगा। It will also depend upon our charge on electron and it will also depend upon Always negatively charged bodies होते हैं ना? कौन? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना? हाँ, नेगेटिवली चार्ज होता है, पर उस पर चार्ज कितना होता है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना डिफ्लेक्शन है। अभी हमें चार्ज के बारे में पता नहीं है ना, तो वी आर सेइंग कि जो डिफ्लेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे डिपेंड करता होगा कि उसका चार्ज कितना अमाउंट है। लाइक -1 -2 -. हाँ, वैसे तो उसका फिक्स होता है, पर उस टाइम पे जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो हमें चार्ज के बारे में पता नहीं था। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चार्ज एंड मास इन दिस एक्सपेरिमेंट। अभी हम देखते हैं कैसे। सो तो मुझे बताओ एवरीवन, आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर कि डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन दीज 3 पॉइंट्स? यस और नो? जल्दी से चैट पे लिखें यस और नो। कोई डाउट है तो माइक पे पूछो। अरे डाउट था सर, जो आपने थर्ड पॉइंट लिखा है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड द रे, इसके अंदर अपने कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड बंद कर रखी है तो वो भी स्टार्ट की। ये वाले केस में हाँ, तो इसमें ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। When only magnetic field is applied, और सेकंड वाले पॉइंट में only electric field is applied. सो बट मैग्नेटिक फील्ड भी तो तभी बनेगी जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। किसमें जैसे से? आपने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये अलग सर्किट में है। 3 सर्किट है ये मान लो। एक सर्किट ये जिससे इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज निकल रहे हैं, एक सर्किट होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्किट, और तीसरा सर्किट होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का सर्किट। तो जब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करोगे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम ऑफ कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ सेपरेट सर्किट, दिस इज अ सेपरेट स्विच फॉर दैट। क्लियर? और सर ये पॉइंट सी को क्यों हिट करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा ना? अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा जब पॉजिटिव वाली फील्ड ऑन होगी, पर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, ये नॉर्थ साउथ ओपन है, यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, ये दोनों रॉड्स बंद है, तो उन रॉड्स से फर्क ही नहीं पड़ेगा डिफ्लेक्शन, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलेगा। और मैग्नेटिक फील्ड उसने ऐसे सेट करी थी कि इलेक्ट्रिक से अगर ऊपर जा रहा था तो मैग्नेटिक लगाने से वो नीचे हिट करेगा। सर अगर मैग्नेटिक फील्ड और
हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑन है तब फिर मतलब उसका डिफ्लेक्शन कैसे होगा? वही चीज वही अभी हम करेंगे, इसके बाद वही करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो तुम मुझे बताओ ये 3 पॉइंट तो सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, करमजोत इज दिस क्लियर? भूमि, काव्या, ठीक है। सो अब बात आती है अगर दोनों फील्ड को ऑन कर देंगे, और वही थॉमसन ने करना था। थॉमसन ने इतनी मेहनत इसलिए करी थी क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को एक साथ ऑन करना चाहता था। तो नेक्स्ट ही व्हाट ही डिड वाज, थॉमसन switched on both electric and magnetic fields he switched on both electric and magnetic fields and adjusted them such that electron hits point B again. देखो अब थॉमसन ने क्या किया, अब थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड को भी ऑन कर दिया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ऑन कर दिया। अब डिपेंडिंग अपॉन की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, जो इलेक्ट्रॉन हो सकता था वो कहीं पे भी हिट कर सकता था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती तो वो ऊपर हिट करता, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती तो नीचे हिट करता। बट जैसे हम रेडियो में चैनल्स ट्यून करते हैं, एफएम चैनल चलाते हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह को हम ट्यून करते हैं, उसी तरीके से he was able to tune, adjust both electric and magnetic field, और electric magnetic field को adjust करके he adjusted it such that ये particle फिर से कहाँ पे hit करे, it hit the point B again. तो he adjusted the strength of electric and magnetic field such that the particle again hits the point B. In doing so उसे वैल्यूज मिल गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, जो उसे अप्लाई करनी पड़ रही थी टू ब्रिंग इट बैक टू द पॉइंट बी। तो ये जो वैल्यूज उसको मिली अपने एपरेटस में कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए होती है, और ही वाज एबल टू relate it with the deflection of the particle, and deflection as we know it depends upon charge and mass of electron. So by doing the experiment repeatedly and using the values and calculating them, उसने अपने मेथड से, जो उसका रिसर्च पेपर होगा वो बहुत एलैबोरेट होगा, वो हमारे बुक में नहीं गिवन कि उसका एलैबोरेट मेथड क्या था, बट इट इज गिवन टू अस दैट बाय careful calculations he was able to determine charge to mass ratio of electron. और चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकाल ली, क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन चार्ज और मास पे डिपेंड करता था। तो बार बार डिफ्लेक्शन की वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हुए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज के साथ ही मेड सम कैलकुलेशंस, और उन कैलकुलेशन से ही वाज एबल टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखना, उस टाइम पे वी डिड नॉट नो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, वी डिड नॉट नो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस टाइम पर अगर चार्ज बाय मास की रेशियो निकाल ले तो इट वाज अ बिग डील। सो बाय दिस केयरफुल experiment he was able to determine the charge to mass ratio of electron, and this is why he is known to us, he is so famous about this experiment कि इलेक्ट्रॉन पे उस टाइम पर चार्ज टू मास कैसे निकाला गया। दिस इज द इलैबोरेट एक्सपेरिमेंट। इज दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर टू यू, यस और नो एवरीवन? So
Sir, one doubt was there. सर सर जब दोनों एक साथ ऑन करेंगे तब डिटेक्शन वाला क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा तेज बोलो, फिर से बोलो। सर जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऑन करें तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है, वो वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई किया, देखो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे तो ऊपर जा रहा था, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो नीचे जा रहा था। अगर दोनों चीजें लगाई जाए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में वो डिफ्लेक्शन कहीं पे भी आ सकती थी ए और सी के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या मैग्नेटिक फील्ड की। तो व्हाट ही डिड वाज, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे सपोज वो पार्टिकल यहाँ पे हिट कर रहा था, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया जब तक वो पॉइंट फिर से बी तक नहीं पहुंच गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बराबर कर दिया गया, सो दैट पार्टिकल अगेन हिट्स द पॉइंट बी। समझ आया वंशिका? तो सर मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑन करेंगे तो वो पॉइंट बी पे हिट करेगा। उसने एडजस्ट किया। एडजस्ट का मतलब होता है उसके पास एक apparatus है जिसमें वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर सकता है। तो अगर हाँ, तो जब उसने दोनों लगाई तो उसने एडजस्ट करके वो यहाँ पे लेके आया। नॉट लाइक कि वो हमें आई यहाँ पे रही थी, उसने एडजस्टमेंट्स करी थी उसके लिए फील्ड में। भूमि, तुम्हारा भी कोई डाउट था? So I wanted to ask that the ratio which J.J. Thomson found, he concluded that it does not depend on the gas which we have used, and it does not even depend upon the material of the electron. So why is it so? दिस इज अ टॉपिक ऑफ फ्यूचर क्लास। सेकेंड क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाई द पार्टिकल कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। इसका मैं तुम्हें अलग से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, बट बाकी सबको मुझे अभी नहीं बताना है बिकॉज इट माइट क्रिएट कंफ्यूजन। तो प्लीज वेट, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? और बाकी सबको ये क्लियर है? चिराग, जतिन, करमजोत, काव्या, मयंक, वंशिका, एक्सपेरिमेंट क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। मयंक? यस सर। ठीक है, तो इसका मैं नोट्स तुम्हें भेज रहा हूँ। भूमि एंड वंशिका विल स्टे। वंशिका जो तुम्हारा पुराना डाउट है वो ले लेना, और भूमि में तुम्हारा डाउट अभी क्लियर कर रहा हूँ जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। टाइप प्रेजेंट इन चैट एवरीवन, एंड इसके नोट्स मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ये अपने नोट्स कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना, ठीक है? एंड यू विल आल्सो गेट अ वीडियो फॉर दिस। Alright, so now everyone else can leave. Bhumi and Vanshika will stay because they have doubt. Bhumi, listen. Cathode rays, do you know how cathode rays are formed? Cathode rays कैसे बनती हैं? Yes, so the electric current is passed. So a few rays from cathode are observed from cathode to anode. Which anode is perforated, means we have. No. You are telling me the observation. I am saying cathode ray बनती कैसे? ये cathode rays का formation ही कैसे होता है? What is the reason behind कि cathode rays cathode से चल रही हैं और anode में जा रही हैं? Do you know about it? Because cathode is a negatively charged electrode and anode is a positively charged electrode. So from cathode rays are seen which carry electrons with a negative. ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। You are saying कि cathode से it originates from cathode, moves towards the anode. This is correct, completely correct. I am saying how is cathode rays formed on the cathode? मैं ये पूछूं, do you know about it? Some metals. वंशिका क्या बोल रहे हो? बोलो। Some metals. मेटल से नहीं, मेटल से रिलीज नहीं होती है। तो भूमि, Cobalt, nickel, I guess. नो, नॉट फ्रॉम द मेटल। एक्चुअली द थिंग इज, भूमि हमारा आगे का फ्यूचर का टॉपिक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिकॉज यू हैव डाउट इन इट। देखो, इसके अंदर कुछ गैसेस बची थी बिकॉज गैसेस वर प्रेजेंट एट लो प्रेशर, देयर वाज नॉट वैक्यूम। तो सपोज देयर इज अ गैस लाइक
हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन अंडर द कंडीशन ऑफ हाई वोल्टेज के अंदर दिस हाइड्रोजन get ionized and releases the electrons. हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। हाइड्रोजन गैस वैसे H2 होती है, so it will release 2H plus and it will release 2 electrons. These 2 electrons are the cathode rays. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कैथोड रेज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर द कैथोड रेज। तो अगर कोई तुमसे पूछे हाउ आर कैथोड रेज फॉर्म, तो you will say cathode rays are formed due to the process of ionization under high voltage. अब आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, मान लिया। अब अगर मैंने इसके अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन की जगह हीलियम बनती, तो हीलियम भी आयोनाइज होगी। हीलियम आयोनाइजेस एंड रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हीलियम, या सपोज तुमने इसके अंदर नाइट्रोजन भर दी या तुमने कोई भी गैस भर दी, तो इन ऑल दीज केसेस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी दे विल फॉर्म द कैथोड रेज, यस और नो भूमि? Yes, yes. तो यू टेल मी, क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन अलग होता है, और ऑल द इलेक्ट्रॉन सेम? इज इट अ फंडामेंटल पार्टिकल और इज इट Fundamental particle. फंडामेंटल मींस कि इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन विल आल्सो बी सेम एज हीलियम का इलेक्ट्रॉन, यस और नो? Yes. So cathode ray of any gas will be same irrespective of the gas present inside the tube, yes or no? Yes, yes. So यही डाउट था, क्लियर हो गया? Yes. ठीक है। And वंशिका, material of electrode also. फिर से बोलो एक बार थोड़ा तेज। Material of electrode. हाँ, material of electrode does not affect because the cathode rays are not forming by the electrode. अगर तुम इसमें चाहे तुम सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले लो या प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड ले लो या गोल्ड की इलेक्ट्रोड ले लो, इनका तो कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इनसे तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे और ना इनके ऊपर कुछ हो रहा है। ये जो भी काम हो रहा है आयनाइजेशन की वजह से हो रहा है, इट इज हैपनिंग इनसाइड द ट्यूब। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द गैस ऑफ द इलेक्ट्रोड। वैसे क्लियर? So मतलब you mean that we have any kind of gas, we have to ionize it first to हाँ, इट आयनाइजेस नॉर्मली अंडर हाई वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज होता है उसको बहुत एनर्जी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से खुद ही निकल जाते हैं जो कैथोड रेज बनाते हैं। So can I leave now? या यू कैन डू। Thank you. ओके, मयंक तुम्हारा कोई डाउट है? सर व्हाट? कोई डाउट रहता है मयंक? नो सर। ओके, यू कैन लीव, देन हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके सर। वंशिका बोलो क्या डाउट था तुम्हारा? सर जो अपने लास्ट वाला लिखा था ना, 1 मास चार्ज ऑफ रेशियो करके, तो 2.7 में आया। ये चार्ज टू मास रेशियो, ये यस सर। इसमें क्या है ना, हमने डिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन पे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होती, ठीक है। अगर मास पे भी डिपेंड करेगा, हल्की चीज ज्यादा डिफ्लेक्ट होती है, भारी चीज कम डिफ्लेक्ट होती है, तो डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू मास। ऑल्सो थॉमसन ने जब डिफ्लेक्शन को इतना स्टडी किया था, तो ही वाज एबल टू यूज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वैल्यूज टू फाइंड कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है चार्ज और मास पे। तो डिफ्लेक्शन को स्टडी करते करते ही वाज एबल टू डिटरमाइन द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट वाज डिपेंडेंट, बट नॉट एक्चुअली चार्ज एंड मास, बट अपनी कैलकुलेशन से ही वाज ओनली एबल टू फाइंड चार्ज डिवाइड बाय मास, और वो आया था 1.76। क्लियर? ओके सर, मतलब ये चार्ज और मास का रेशियो है। हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर। और तुम्हारा लास्ट एंड सर ये कूलम है सी? कूलम पर केजी, ओके ठीक है। तुम्हारे लास्ट क्लास का कोई डाउट रह गया था? सर लास्ट क्लास में नहीं था, वो मोलारिटी के कुछ क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए थे सर, उसमें से एग्जाम्पल में से। तो एक काम करो, तुम मुझे वो व्हाट्सएप कर देना, तो मैं तुम्हारी डाउट्स नेक्स्ट क्लास के एंड में ले लूँगा, ओके सर। ठीक है। और तो चैप्टर 1 तुम्हारा डन है, तुम्हें रिवीजन चाहिए उसकी? यस सर। सर मतलब उस चैप्टर 1 में सिर्फ ये मोलारिटी, मास परसेंट, ये सब ही है बस? हाँ, मोलारिटी ये मास परसेंट तो कंसंट्रेशन टर्म्स है।
फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया चार लिमिटिंग। यूनिट्स करी थी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। हाँ मास परसेंट, ठीक है। उसके बाद वी हैव दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला